Good evening, Gayatri. Good evening, everyone. Still 2 minutes remains. Let's wait for other of your friends to join and then we'll start the class. Okay. Right. It's 4:59. We're going to start the class now. So, good evening, everyone. As you know, my name is Ghazala Firdos, and we have been doing the chapter Principle of Inheritance and Variation for quite a time. And today we are going to finish this chapter. Okay, today we're going to finish it. So, what I was going to do is, I thought today I will do pedigree analysis and tomorrow I will be doing disorders. But then, anyhow, I got to know that the weekend classes, which were supposed to be taken by Vinay sir, so he's going to be on leave. So that's why Sunday I will take the class. Okay. So on that day, Sunday, we are going to solve the questions, and there I'll explain you about the pedigree analysis. Okay. So that includes some of the tricks and tips which is helpful in solving the questions. Okay. So pedigree analysis is not a very big concept. It's a small concept, but we need a lot of practice to do it. With some beautiful tricks and tips, we are going to solve those questions on Sunday. Okay. So today we'll be finishing this chapter. We'll be doing today disorders. Okay, so whatever the mutation concepts were left, we are going to solve that and then we are going to start the disorders. Okay, clear? Yes, yes. Good evening, good evening. Okay, we're going to start then. So this, okay, was remaining in the last class about the gene mutation. Okay, so what we had done, we had already completed the chromosomal mutation. In the chromosomal mutation, we have already completed the genomatic mutation and the chromosomal aberrations. That has been completed. Now, coming to the gene mutation, what we are going to understand here is that gene mutation is caused by the change in nucleotide. Either the change in nucleotide number, okay, as all of you know, nucleotides are four, okay. So adenine, guanine, okay, thymine and cytosine. I know you know that, but still. So there might be change in number, or there might be a change in the sequence, or a type of nucleotide might get changed. So there might be anything. So first among this, you need to remember is a substitution, which is also called as a replacement. So here what happened? Replacement of one nitrogen base by another. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन जो है, कोई भी नाइट्रोजन बेस, देखो नाइट्रोजन बेस चार चीजों से होता है, ठीक है, या फिर एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन या फिर साइटोसिन, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि आरएनए के केस में यूरासिल आता है थाइमिन की जगह पे. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट टाइप है ट्रांजिशन. हियर व्हाट हैपेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्यूरिन बाय अनदर प्यूरिन. ठीक है, अगर रिप्लेसमेंट होगा तो प्यूरिन की जगह पे और एक प्यूरिन आएगा. बेटा ये सब बेसिक चीजें हैं, आपने लास्ट ईयर पढ़ ली हैं 11th के क्लासेस में, है ना बेटा. बायोमोलिक्यूल्स में आप लोगों को बेसिक समझ में आया था कि कितने क्या कहते हैं नाइट्रोजनस बेसेस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स किसको कहते हैं, ठीक है, कैसे अरेंज होता है, डबल हीलिक्स क्या होता है. अगर नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत ब्रशअप करके ही जाएंगे, बट स्टिल अभी के लिए देखो बेटा, यहाँ पे आप देख लो प्यूरिन. ओके, ये जो है P इंडिकेट्स प्यूरिन, प्यूरिन हैज A एंड G, pyrimidine हैज T एंड C. ठीक है, जब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन एक ऐसा टाइप है वेर वन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, जिसका मतलब अगर ये है तो G होगा या फिर G है तो ये होगा. ठीक है, एंड इन अनदर केस there might be a possibility of replacement with one pyrimidine by another pyrimidine. एक pyrimidine और एक pyrimidine से रिप्लेस होगा. ठीक है, जैसे T से C या फिर C से T, ये एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, अनदर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ट्रांसवर्शन, जिसमें होता है रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय pyrimidine और pyrimidine बाय प्यूरिन. दोनों में किसी एक का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. जहां पे क्या होगा, देखो
ए टी से कन्वर्ट हो सकता है या फिर टी ए से, या जी ए से हो सकता है या फिर सी से हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस। बट हियर यू नीड टू रिमेंबर ट्रांजिशन होगा प्यूरिन प्यूरिन के बीच में, ट्रांसवर्जन होगा प्यूरिन पिरामिडिन एंड पिरामिडिन और प्यूरिन के बीच में। दिस इज सब्स्टिट्यूशन, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस बाय अनदर। कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 4, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे वर्डिंग्स में लिखी है बेटा, आप ये पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, सब्स्टिट्यूशन है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस बाय अनदर। इसमें 2 टाइप हैं ट्रांजिशन, वन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन while one pyrimidine is replaced by another pyrimidine। ट्रांसवर्जन में क्या होगा? प्यूरिन पिरामिडिन के साथ या फिर वाइस वर्सा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक सिंगल भी नाइट्रोजन बेस या तो ऐड हो गया या तो डिलीट हो गया या तो कुछ चेंज हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, पूरा ही फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एंड इसका जिक्र किया गया है आपकी एनसीईआरटी में, तो आपको ये थोड़ा जान लेना है, ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में कॉज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ एंटायर रीडिंग फ्रेम आइदर बाय लॉस और एडिशन ऑफ वन नाइट्रोजन बेस और मोर, या फिर एक नाइट्रोजन बेस हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया है इंसर्शन है, ओके, फर्स्ट टाइप में फ्रेम शिफ्ट के अंदर इंसर्शन। हियर एडिशन ऑफ वन और मोर नाइट्रोजन बेस इज अकरिंग इन डीएनए, ऐड होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देख लो आप, एक सीक्वेंस है एटीटी सीजीसी टीएजी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एटी के बीच में जी को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एटी के बीच में जी को ऐड कर देंगे। अब देख लो, एक नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाने से पूरा ही फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने दिखाया है 3-3 में। बेटा हमारा जो जीनोमिक सीक्वेंस होता है या फिर हमारा जेनेटिक सीक्वेंस होता है, वो 3-3 में ही अलग होता है। क्यों? बिकॉज दीज 3 नाइट्रोजन बेस टुगेदर वी कॉल इट एज कोडॉन, and this codon is necessary to be read by any enzyme या फिर कोई टीआरएनए, जिसके वजह से वो रेड होके हमको इंफॉर्मेशन प्रोटीन मिलता है, ठीक है। आप ये पढ़ोगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है, कैसे ये इंफॉर्मेशन जो डीएनए में है वो रीड होके हमको प्रोटीन मिलता है। बट यहाँ पे आप इतना देख लो कि एक एडिशन नाइट्रोजन बेस होने से पूरा ही फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलर वाइज डिलीशन में भी एक आप यहाँ पे डिलीट कर दो, जैसे एटीटी सीजीसी टीएजी है, यहाँ पे आप टी निकाल दो तो आपका पूरा ही फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है डिलीशन ऑफ वन नाइट्रोजन बेस। आप ये कहाँ पे देख सकते हो, थैलेसीमिया डिसीज में देख सकते हो, ओके, थैलेसीमिया आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा जीन म्यूटेशन में 2 टाइप्स, वन इज सब्स्टिट्यूशन, अनदर वन इज फ्रेम शिफ्ट। यही चीज यहाँ पे लिखी है, आप यहाँ पे पढ़ लो बेटा। हाँ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को अनदर नेम है गिबरिश म्यूटेशन, याद रखना, ठीक है। डिलीशन इंसर्शन पढ़ लिया हम लोगों ने। नाउ आपकी एनसीईआरटी ने पॉइंट म्यूटेशन के ऊपर स्ट्रेस किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और नीट में बहुत बार पूछा भी गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। देखो एक सिंगल बेस पेयर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या तो डिलीट हो गया या तो ऐड हो गया या तो कुछ भी हो सकता है, बट बाय द वन सिंगल बेस पर कुछ भी म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अभी जो हमने लास्ट में देखा ना, इंसर्शन और डिलीशन, या फिर क्या कह सकते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, उसमें भी पॉइंट म्यूटेशन आप देख सकते हो, वेयर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द थैलेसीमिया। तो यहाँ पे आप उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ग्रॉस म्यूटेशन क्या होता है बेटा, इट इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन मोर देन वन बेस पेयर। एक बेस पेयर से ज्यादा अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस म्यूटेशन। अगर एक ही सिंगल बेस पेयर या फिर नाइट्रोजन बेस में कुछ चेंज हो रहा है तो दैट इज पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। साइलेंट म्यूटेशन किसको बोलते हैं, जहां पे म्यूटेशन तो हुआ है बट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। जैसे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कैपिटल ये स्मॉल है, जो स्मॉल ये है ये एक डिफेक्टिव था, ओके, ये क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम था, बट प्रॉब्लम था तो एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। ऑल्दो म्यूटेशन हुआ है बट एक्सप्रेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ए है ना बेटा, ये कैपिटल ये डोमिनेट कर गया और वो एक्सप्रेस कर गया, सो डिसीज वाला एक्सप्रेस नहीं हुआ। सो इन दैट केस यू कैन कॉल इट एज अ साइलेंट म्यूटेशन। क्यों? बिकॉज फिनोटाइपिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन। मुझे पता है म्यूटेशन को मैंने बहुत लंबा ही ले लिया, क्योंकि म्यूटेशन में क्वेश्चंस आते हैं बेटा,
this area you can expect questions, so that is why I have taken a lot of time. प्लीज आप वो पीपीटी जब मैं डाउनलोड करके, सॉरी नॉट डाउनलोड, मैं अपलोड करूंगी ना ड्राइव में, तो आप वहां से देख के पढ़ लेना बेटा, एंड टाइम टू टाइम देख के पढ़ लो, ठीक है. So this is all about mutation. Now coming to the mutagens. Okay, what are mutagens? Mutagens are nothing but agents. Okay, these are agents which are responsible to cause the mutation. म्यूटेशन को कॉज करने के लिए ये एक टाइप के एजेंट्स होते हैं, या फिर कोई फिजिकल या केमिकल फैक्टर भी आप बोल सकते हो. ओके, एंड दोज एजेंट्स आर कॉल्ड एज म्यूटाजेंट्स. ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के म्यूटाजेंट्स आप देख सकते हो, एक फिजिकल और एक केमिकल. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल, यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा, हाई एनर्जी रेडिएशंस होंगे. ओके, हाई एनर्जी रेडिएशंस कौन से होंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग. आयोनाइजिंग में कौन आता है, एक्सरे आएगा, गामा रे आएगा, कॉस्मिक रे, अल्फा रे, बीटा रे, ये सारे बेटा आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं. नॉन आयोनाइजिंग में कौन आता है, यूवी रे. ठीक है, तो यूवी लाइट, ये अब इसको भी ले सकते हो. ठीक है, तो ये आपका है बेटा, इसको आप पढ़ लेना, क्लास के बाद इसको पढ़ लेना. ठीक है, देन केमिकल म्यूटेशंस में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, 4 मैंने दी हैं. एक बेसिक एनालॉग है, एक अल्कलाइटिंग एजेंट है. देखो बेसिक एनालॉग में थोड़ा समझा देती हूँ बेटा. यहाँ पे क्या होता है, they resemble the normal bases of DNA, therefore get incorporated into DNA in a place of them. ठीक है, समझ लो एक होता है, एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, समझ लो एक स्क्वायर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है. ठीक है, सेम स्ट्रक्चर किसी का सेम होगा तो ये होगा बेटा एनालॉग. ठीक है, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं एनालॉग. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ड्यूरिंग द डीएनए फॉर्मेशन, या फिर जहां पे नाइट्रोजन बेस हो रहा था, जम रहा था, तो वहां पे ये ज्वाइन होना चाहिए था. समझ लो ये कैपिटल ये है, ये कुछ बी है. ठीक है, तो ए को ज्वाइन करना था डीएनए के अंदर, बट ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी ए के जगह पे बी ने ज्वाइन कर लिया. दिस इज कॉल्ड एज बेस एनालॉग्स, जो रिसेंबल को होते हैं एक दूसरे के वजह से, लेकिन इनके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ठीक है, ये हो गया बेस एनालॉग्स, एक एग्जांपल है. ठीक है, अल्कलाइटिंग एजेंट्स के यहाँ पे एग्जांपल्स है, आप ये देख लो. आप बेटा केमिस्ट्री में तो स्ट्रांग हो ही, तो एक बार पढ़ लेना. ठीक है, देन नाइट्रस एसिड होंगे, दैट इज इट इज डी अमाइनेटिंग एजेंट. ठीक है, वो आप देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप थोड़ा एग्जाम्पल्स पढ़ लेना. ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल्स पढ़ लो. देन एक्रिडिन्स, that is they are derived of heteroaromatic molecules for which a number of dyes and pharmaceuticals are prepared. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लो. ठीक है, सो म्यूटेजेंस इतना समझ में आ गया तो काफी है बेटा. ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. द चेंज ऑफ सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर इन अ जीन इज, एक जीन के अंदर अगर सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर का चेंज हो रहा है तो व्हाट डू यू कॉल इट. दो ऑप्शंस सेम हो गए ना. एक मिनट, मैं इसको एक को साइलेंट कर देती हूँ. ठीक है, कंसिडर सी इज अ साइलेंट. ठीक है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो आप सी को साइलेंट कंसिडर कर लेना. सो दीज आर योर ऑप्शंस. जस्ट टेल मी व्हाट माइट बी द आंसर हियर इन द चैट बॉक्स. ओके, यस साहिल, यस साक्षी, या इट्स वेरी इजी बेटा. अभी हम लोगों ने देखा है ना. ऐसा मत समझो कि मैम ने म्यूटेजेंस पे ऐसा भाग गए, मतलब देखो हम लोगों के आगे बहुत ज्यादा सिलेबस है, टाइम नहीं है बेटा हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत बहुत कम है. सिलेबस अगर कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेना है, तो कुछ चीजों को फास्ट जाना पड़ेगा. ठीक है, हर चीज मैं इतना फुर्सत से नहीं समझा सकती. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा पॉइंट म्यूटेशन. आई टोल्ड यू राइट. पॉइंट का मतलब क्या है, सिंगल नाइट्रोजन बेस. ठीक है, ए टी जी सी, तो इनमें कुछ भी चेंज होता है एक में, किसी एक में, तो वी कैन कॉल इट एज पॉइंट म्यूटेशन. ठीक है, ग्रॉस म्यूटेशन वो है जिसमें एक से ज्यादा नाइट्रोजन बेस का इन्वॉल्वमेंट हो while causing mutation, उसको ग्रॉस बोलते हैं. साइलेंट which is not showing a phenotypic expression. ठीक है ना. तो यहाँ पे कुछ हम लोग पढ़ते हैं बेटा. डिसऑर्डर्स को समझने से पहले आपको जानना चाहिए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में. ठीक है, सो हम लोगों ने लिंकेज तो पढ़ा ना बेटा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. सो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन, जिसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे वर्क किया. बहुत कुछ उन्होंने चीजें देखी, वहां पे कंपेयर किया मेंडल के पी प्लांट्स के साथ, ड्रोसोफिला में क्या सेपरेट हुआ, लिंकेज क्या है, सब देख के समझ के इन्होंने डिस्कवर किया था लिंकेज. सबको याद है ना. सो इनहेरिटेंस ऑफ सम ट्रायड्स आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स एंड दीज आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड ट्रायड्स. देखो बेटा, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स वो हैं जो इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है, अगर कुछ भी, अगर डिसीज्ड है तो भी इनहेरिट होगा, अगर अच्छा है तो भी इनहेरिट होगा,
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, तो भी वही इनहेरिट होगा। दीज सेक्स लिंक्ड या फिर जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो इनहेरिट होंगे ही होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यहाँ पे आप कुछ टाइप्स देखोगे बेटा, ओके, यू आर गोइंग टू सी सम टाइप्स। कंसिडर फर्स्ट टाइप इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? It is a type of sex-linked inheritance where parent passes the triads to the grandchildren of the same sex through the offspring of the opposite sex. देखो बेटा, इसका सेम इतना ही मतलब है, अगर ग्रैंडफादर को कोई डिसीज है, ठीक है, तो ग्रैंडफादर को डिसीज है, तो ये इससे फादर को नहीं आएगा, इससे मदर को आएगा, ठीक है। तो मदर से फिर किसको आएगा? डॉटर को नहीं जाएगा, सन को जाएगा। तो यहाँ पे फादर और सन एक ही जेंडर है, बट जो कैरियर है ये मदर है जो ऑपोजिट जेंडर की है। इसको हम बोलते हैं बेटा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। तो समझ लो मैं कैरियर हूं, तो मेरे बेटे को जाएगा, वो क्या कहते हैं, डिसीज एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है, बट वहां से नेक्स्ट जनरेशन। सो लाइक दिस यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाया जा सकता है। Okay, so grandfather to mother. So here mother acts as a carrier. Okay, mother is a carrier here who doesn't show the disease, but she carries the gene in her. ठीक है, तो इस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में टू टाइप्स होते हैं। वन इज diagenic, where you will see father to grandson through the daughter, which I have just now given an example. This is one type. Another type is diandric, where mother to granddaughter, the disease is passed through the son. सन बिकम्स कैरियर हियर, ओके, यहाँ पे सन कैरियर हो जाता है, यहाँ पे डॉटर कैरियर हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है बेटा एक टाइप ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अनदर टाइप इज वी कैन कॉल इट एज नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो नॉन क्रिस क्रॉस क्या है? यहाँ पे भी आप दो टाइप देख सकते हो बेटा, एक होलोएंड्रिक, एक होलोगाइनिक, ठीक है। तो होलोएंड्रिक क्या है? वेयर फ्रॉम डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट हो रहा है डिसीज का इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम फादर टू सन, और यू कैन से मेल टू मेल, ठीक है, फादर से सन को हो रहा है, जैसे मेल टू मेल हो रहा है। होलोगाइनिक, देखो बेटा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है आपको, एंड्रा या फिर एंड्रिक ऐसा जब आता है ना, इट ऑलवेज इंडिकेट्स मेल, ठीक है। वेर एवर यू कम अक्रॉस द टर्म गाइन और गाइनिक, इट इंडिकेट्स फीमेल, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है डिसीज का ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू डॉटर, दैट इज फीमेल टू फीमेल। यहाँ पे नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है, बिकॉज सेम सेक्स इज कैरिंग द डिसीज एंड इट इज शोइंग द एक्सप्रेशन। बट क्रिस क्रॉस में क्या हो रहा था? ऑपोजिट सेक्स से हो रहा था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है बेटा। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आप आगे जाके देखोगे, ठीक है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, वहां पे आप देखोगे, आई विल गिव यू देयर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देयर इज एन अनदर टाइप वेयर वी कैन कॉल एज सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, ठीक है। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? हियर द ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्स ऑल्दो देयर जीन्स अकर इन द अदर सेक्स। देखो बेटा कुछ होते हैं जीन्स क्रोमोसोम में जो दोनों ही जेंडर में होते हैं, ठीक है, दोनों ही जेंडर में होते हैं, बट एक में ही एक्सप्रेस होते हैं, एक में ही एक्सप्रेस होते हैं ना। सो दैट एक्सप्रेशन इज लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स, दैट इज व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग हियर, ठीक है। वही बता रहा है यहाँ पे। देखो मुस्टैच, जो मूछ और दाढ़ी का होता है ना जीन, वो फीमेल में भी होते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं होते, सिर्फ मेल में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट इन ह्यूमन फीमेल, देखो एक्चुअली मेल में रूडिमेंटरी ब्रेस्ट तो है ही, बट दे आर नॉन फंक्शनल, है ना। तो जिसके जीन्स भी होंगे या फिर हॉर्मोन्स जो होंगे वो भी यहाँ पे फंक्शनल नहीं होंगे मेल के केस में, बट दे आर फंक्शनल इन द केस ऑफ फीमेल्स। सिमिलरली सेकेंड टाइप है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, ठीक है। यहाँ पे सेक्स लिमिटेड है, अनदर वन इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। यहाँ पे दीज ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोमल जीन्स, ठीक है। ऑटोसोमल का मतलब क्या है? वो जो है XX या फिर XY को छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम्स है, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज ऑटोसोमल बिकॉज दे आर सोमैटिक, ठीक है। तो traits are controlled by autosomal genes and the expression of these genes in a particular sex depends on favorable condition. इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा। The gene pattern of baldness acts as dominant one in human male, ठीक है, acts as a dominant one in human male because it can express itself due to availability of male hormones. देखो बेटा यहाँ पे जीन है, एक्सप्रेस भी होगा, बट यहाँ पे कुछ चीजें फेवर भी कर रही हैं। क्या फेवर कर रहे हैं बेटा? जैसे हार्मोन समझ लो, ठीक है। यहाँ पे अब जीनोटाइप ले लो बेटा, कैपिटल बी है तो पक्का बॉल्डनेस आएगा फीमेल और मेल में, ठीक है। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है
मेल में बॉल्डनेस आया, फीमेल में नहीं आया। तो आप इस केस में देखो बेटा, क्यों नहीं आया फीमेल में? क्योंकि जो हॉर्मोन्स बॉल्डनेस को और ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वो फीमेल में नहीं है, वो सिर्फ मेल में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्मॉल बिल है, तो दोनों में ही एब्सेंट है, ये तो समझ में आ गई। ठीक है बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जीन तो है, ठीक है, फीमेल में भी है और मेल में भी है, बट मेल में जीन्स के साथ कुछ कंडीशंस हैं जो फेवर कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम एक्सप्रेस हो जाओ, दोज आर हॉर्मोन्स। ठीक है, जैसे मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, वो इन्फ्लुएंस करते हैं बॉल्डनेस को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आप इसको क्लास के बाद एकदम काम माइंड से बैठ के पढ़ो तो आपको ये और ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना। एक्स लिंक्ड जीन, ओके, एक्स लिंक्ड जीन या फिर एक्स लिंक्ड ट्रायड्स, यहाँ पे इन ह्यूमंस एक्स क्रोमोसोम कैरीज allele of number of dominant and recessive humans, they are linked। ठीक है, वो लिंक्ड हो सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रायड्स हो सकता है, फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रायड्स हो सकता है। आपके जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो सारे ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, एग्जाम्पल हो गया कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये नहीं दिया है एनसीईआरटी में, बट मैंने यहाँ पे मेंशन तो किया, आप देख सकते हो। ठीक है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस विच आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रायड्स, वेयरएज डोमिनेंट ट्रायड्स का यहाँ पे मैंने दिया है मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज वन ऑफ द डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया एक्स लिंक्ड जीन्स में। ठीक है, कमिंग टू द वाई लिंक्ड जीन, यहाँ पे मैंने डिसीज दिया है हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर। व्हाट इज हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर? आपने देखा होगा कुछ जेंट्स में ना हेयर बहुत ज्यादा एक्सेसिवली होते हैं, उनके कानों के पास हेयर मतलब अबंडेंटली ग्रो हो जाते हैं ऐसे लंबे लंबे, दैट इज अ डिसीज कॉल्ड एज हाइपर ट्राइकोसिस, एंड ये होता है वाई लिंक्ड जीन। मतलब देखो बेटा, ये डिसीज फीमेल्स को नहीं आता, क्यों? क्योंकि वाई में होता है, वही फादर में होगा, फिर सन में जाएगा, फिर फादर में, सन में, तो ये ऐसे ही जाता है, फीमेल की कोई बात नहीं है। वेराज एक्स लिंक्ड जीन क्या होता है बेटा, अगर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं तो वो ज्यादातर आपको फीमेल्स में नहीं दिखेंगे, डिसऑर्डर्स मेल्स में दिखेंगे। आप पूछोगे क्यों मैम, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स मेल्स में क्यों ज्यादा दिखते हैं वेराज फीमेल्स में क्यों कम दिखते हैं? बिकॉज मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अगर ये एक्स डिसीज्ड निकला तो बेटा एक्सप्रेशन तो होगा, प्रॉब्लम पूरी की पूरी हो जाएगी। ठीक है, whereas in the case of female we have 2 X chromosomes, अगर एक समझ लो रिसेसिव डिसीज्ड है तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा ना, ये तो सप्रेस हो जाएगा, है ना। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, फीमेल्स बच जाती हैं। ठीक है, फीमेल्स बच जाती हैं जो यूजुअली रिसेसिव होते हैं। अगर फीमेल्स में डोमिनेंट है, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज है तो एक्सप्रेस होगा, वेराज एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में फीमेल्स बिल्कुल डिसीज नहीं होते, अगर होते हैं तो कैरियर होते हैं, अगर डिसीज्ड हैं भी तो वेरी मिनिमल नंबर। ठीक है, मेल्स ज्यादा नंबर में होते हैं, फीमेल्स कम नंबर में होते हैं, ये चीज समझ लो बेटा। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे डिसीजेस को समझने में। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? ओके, टाइम तो ऐसे भागता है, मैं क्या करूं। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर द डिसऑर्डर्स ड्यू टू चेंज इन जीन्स और क्रोमोसोम्स, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है बेटा, देखो चेंजेस हो रहे हैं या फिर जीन में या फिर क्रोमोसोम में, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख लो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में, यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दिए हैं। हीमोफीलिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोयूरिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। वेराज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपके सिलेबस में 3 है, अगर उन तीनों को ही आप क्लियरली याद रख लोगे ना बेटा, तो मैं बता रही हूँ आप ना पक्का एक मार्क गेन करोगे इस चैप्टर से। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा बेटा, आप लिख के रख लो, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो इसी डिसऑर्डर्स के बारे में हम अब लोग क्या कहते हैं, हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और मेनली बिकॉज ऑफ ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन अ जीन। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स कैसे हुए हैं, ऑल्ट्रेशन हुआ है या फिर कुछ म्यूटेशन हुआ है, या तो सिंगल जीन में हो सकता है या तो बहुत सारे जीन्स में भी हो सकता है, कोई नहीं। ठीक है, लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कुछ ऑल्टर हो रहा है। ठीक है, सो दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यूजुअली ये ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, क्यों? क्योंकि बेटा ये यूजुअली सेक्स क्रोमोसोम्स में ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ऑटोसोमल। ऑटोसोमल में भी होते हैं,
ठीक है, ऑटोसोमल भी बेटा इनहेरिट करते हैं, बट सेक्स क्रोमोसोम्स में ज्यादा हो सकता है। The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by pedigree analysis. ये हम लोग संडे करेंगे, ठीक है, सब लोग ना संडे कोई भी मिस नहीं करेगा मेरी क्लास, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस हम लोग संडे करेंगे, वहां पे प्रेजेंट होना है ना। तो पेडिग्री एनालिसिस से हम जान सकते हैं कि कौन सी डिसऑर्डर रन कर रही है कोई भी फैमिली में, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं एक टाइप, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आप वही चीज लिखी है, पेडिग्री एनालिसिस डिटेक्ट्स वेदर द ट्राइट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। एक तो बताएगा कि फैमिली है या नहीं है डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल बेटा, एक फैमिली है, ठीक है, एक फादर और मदर है, दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, ठीक है। तो अभी जो चाइल्ड का है अनस्पेसिफाइड सेक्स, हमको सेक्स नहीं पता, बट उसका बारे में हमको जानना है कि अगर उसने कोई डिसीज इनहेरिट की है या नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग कर सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी चेक बाय द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई, जो ग्रैंडसन को कुछ था क्या, ग्रैंड मदर को कुछ था क्या, पूरा ट्री के हेल्प से हम लोग जान सकते हैं कि जो आने वाला बेबी है इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी या नहीं कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर का, ठीक है। नाउ द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स माइट बी डोमिनेंट और रिसेसिव, दो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने जो आपके सिलेबस में पढ़ने के हैं, ठीक है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है, लेकिन जब हम लोग सैटरडे संडे में क्वेश्चंस करेंगे तो मैं वहां पे समझाऊंगी वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलेसेमिया। नाउ पहला जो डिसीज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सो इट्स द फर्स्ट डिसीज। अगर आपको कोई भी बीच में डाउट लगे बेटा तो आप पूछ लेना मुझे, ठीक है। Now, so this sickle cell anemia is an autosome linked recessive triad. मतलब क्या है बेटा, ये जो डिसऑर्डर है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। मतलब कोई ऑटोसोम के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है और वो हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो ऑटोसोमल कंडीशन है एंड यहाँ पे प्रॉब्लम है रिसेसिव में, रिसेसिव ट्रायड में प्रॉब्लम है। देखो बेटा, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कैपिटल ये, ठीक है, मैं बता रही हूँ बस, कैपिटल ये, स्मॉल ये और स्मॉल ये, स्मॉल ये। जब हम लोग कहते हैं ना रिसेसिव ट्रायड में प्रॉब्लम है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताऊंगी ये चीज संडे, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें होती है। तो यहाँ पे जब कोई भी पर्सन में अगर ये कंडीशन है तो डिसीज शो करेगा, ठीक है। तो ऑटोसोम के क्रोमोसोम में रिसेसिव ट्रायड का प्रॉब्लम है, ठीक है। दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर्स फॉर अ जीन। जब दोनों ही पार्टनर्स कैरियर्स हैं कोई भी जीन के लिए, तो उस टाइम पे ये कंडीशन आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बेटा, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन को यहाँ पे इंडिकेट किया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ये है, तो कैपिटल ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे जो ऊपर डाला है दैट इज नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल है। यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखाया है, यहाँ पे क्या है, सिकल सेल का ट्रायड है बट शी इज एन कैरियर, ओके, शी है ही है पता नहीं, बट दे आर कैरियर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव है ना बेटा, कैरियर जो आप देख रहे हो वो जो प्रॉब्लम है जीन में वो रिसेसिव कंडीशन में है, इसीलिए तो इसका नाम दिया है ना ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रायड, ठीक है। जब दोनों ही रिसेसिव होंगे तब इफेक्टेड होंगे, तब क्या होगा, उस पर्सन में डिसीज शो करेगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल है, एक क्या कहते हैं अफेक्टेड है, तो उस केस में कैरियर होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो बेटा, इस कंडीशन में होता क्या है, ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या है आपको, हाँ मैं ये आपको दिखाना चाह रही थी। यहाँ पे देख लो बेटा, एक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, ये एक हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है बेटा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना। तो उसमें आप एक पढ़ लोगे क्वाडर्नरी, ठीक है, जहां पे 4 ग्लोबुलर चेन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे 4 ग्लोबुलिन चेन्स हैं और यहाँ पे एक हीम ग्रुप होता है, सेंटर में एक हीम ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ये 4 है, यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आती हूँ, तो उसमें अगर आपको समझ नहीं आया ठीक से तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ बेटा, एक हीम ग्रुप है बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक अल्फा चेन होगी, यहाँ पे एक अल्फा चेन होगी, यहाँ पे एक बीटा चेन और यहाँ पे एक बीटा चेन। ये जो चेन मैं बता रही हूँ ना बेटा, ये एक प्रोटीनेशियस चेन होती है, ग्लोबुलिन चेन या फिर एक प्रोटीन चेन होती है। जब प्रोटीन चेन होती है तो क्या होता है बेटा, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना, अमीनो एसिड्स के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे देख लो, ऐसे ऐसे करके अरेंजमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट होती है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा,
यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है, ओके, एक नॉर्मल होती है, एक अबनॉर्मल। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देख लो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन है एक, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे 6th प्लेस पे, यहाँ पे क्या लिखा है आप देख लो, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। जो छठवां प्लेस है, 1 2 3 4 5 6, जो 6th प्लेस है बेटा, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे, ओके, वैलिन हो जाता है, ठीक है, सब्सटीट्यूट हो जाता है वैलिन से, ओके, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन का सब्सटीट्यूशन होता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, आप बुला सकते हो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये चेंज होगा ना, तो इट रिजल्ट्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द 6 कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन फ्रॉम गाग टू गूग, ठीक है। तो यहाँ पे GAG होना था बट GUG हो गया। किस लिए हुआ, GAG होना था ग्लूटामिक एसिड के लिए, बट यहाँ पे GUG हो गया जो कोड करता है वैलीन के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, सिंगल नाइट्रोजन बेस की वजह से पूरा का पूरा म्यूटेशन हो रहा है, यहाँ पे डिसीज कॉज कर रहा है। तो इसको क्या हम बुला सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। अब बताइए क्या इसको हम बुला सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्यों, क्योंकि देख लो बेटा एक ही जगह पे यू आ रहा है, ठीक है, एक ही जगह पे यू आ रहा है। मैं आपको बताऊंगी ये कैसे होगा। अभी तो मैंने आपको बताया ना, बीटा ग्लोबिन जो चेन है बेटा, उस चेन में यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आता है। वो कैसे आता है वो आपको मैं बताऊंगी जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे बेटा, जब कोडिंग होती है, ठीक है, एक जीनोमिक सीक्वेंस होता है, उस जीनोमिक सीक्वेंस में जो होते हैं बेटा यहाँ पे एंजाइम्स या फिर अमीनो एसिड्स, या फिर मैं आपको बताऊंगी, वो कोड होके आपको एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। मैंने आपको सेंट्रल डॉगमा बताया था अगर आपको याद होगा तो वो पूरा प्रोसेस होके लास्ट में हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको एक सिमिलैरिटी बताऊंगी कि यहाँ मैं एक्चुअली क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप इतना याद रखो बेटा, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ गया, तो इसकी वजह से गाग की जगह पे गूग आ गया, ठीक है। तो ये की जगह पे यू आ गया। सो दिस इज अ सिंगल नाइट्रोजन बेस म्यूटेशन आप कह सकते हो, ये पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे वही चीज दिया है बेटा। देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का ए जीन जब वो एमआरएनए में था, ठीक है, तो एमआरएनए से वो फिर होगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस दिखा रहा है यहाँ पे, तो होके जब वो प्रोटीन बनेगा तो वो क्या करना चाहिए था, कोड करना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड को। बट यहाँ पे प्रॉब्लम, अरे ये तो मैं आधा ही पिक्चर दिखाया है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, GAG के जगह पे GUG आएगा और वो जो कोड करेगा वैलिन को कोड करेगा। सो ये होता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जब सिकल सेल हो जाता है तो वो कॉज करता है ब्लॉकेज अपने वेन्स और कैपिलरीज में, ठीक है। तो आप ये टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ लो बेटा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस था जो मैंने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, ओके, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन causing the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle like cell, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा क्या होता है, आरबीसी सेल बाइकॉनकेव होता है, बिकॉज लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के वजह से ये चेंज भी हो रहा है, ठीक है। जेनेटिक लेवल पे क्या हुआ हीमोग्लोबिन का वो हमने बता दिया, ये हो रहा है फिजिकल कंडीशंस में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन कैसे हुआ मैंने समझा दिया, गाग की जगह पे गू, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन, बट उसके होने से और ऑक्सीजन की कमी होने से यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइकॉनकेव डिस्क के जगह पे आपको मिल रहा है एक सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया बेटा सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। जब सिकल सेल बहुत सारे हो जाते हैं तो वो कॉज करता है अनीमिया, वो आप जाके पढ़ोगे आगे के आने वाले क्लासेस में, ठीक है। चलो आई होप दिस इज क्लियर। एक यहाँ पे मैंने दिया है क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बेटा ये, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिफिशियंसी डिसीज, ऑटोजोमल हेरिटेबल डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था, ये CFU नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओ गॉड, अरे कहाँ पे गया, हाँ, ओके, यस लक्षदीप, एनी अदर,
सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तो नहीं है बेटा, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। गायत्री वही अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बेटा, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जो ऑटोसोम्स हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इट इज सेक्स सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो डिफिशियंसी डिसीज तो देखो बेटा, डिफिशियंसी है, बट ऑटोसोमल डिसीज की वजह से डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन हो रही है। ठीक है, दोनों ही एक्चुअली बताऊं तो करेक्ट है, बट सी जो है वो मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाती है बिकॉज द चेंज इन स्ट्रक्चर, बट ये प्रॉब्लम है ऑटोसोमल का, इन्फेक्शियस डिसीज तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। ओके, विल गो टू नेक्स्ट देन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा हीमोफीलिया। ओके, सो हीमोफीलिया डिसीज को वी आल्सो कॉल इट एज ब्लीडर्स डिसीज या फिर रॉयल डिसीज। ठीक है, ब्लीडर्स डिसीज और रॉयल डिसीज हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको देखने मिल रहा है, दिस इज इनहेरिटेड कोआगुलेशन डिसऑर्डर। इनहेरिटेड का मतलब क्या है? पेरेंट्स से बेबी को। कोआगुलेशन मीन्स व्हाट, यू ऑल नो बेटा, जब भी एक कट होता है तो ब्लड बाहर निकलता है। तो ब्लड क्या होगा, बाहर जब निकल रहा है तो उसको क्लॉट करना बहुत जरूरी है। जैसे वो क्लॉट होता है आपका ब्लड रुक जाता है और यू आर गुड टू गो, है ना। बट ये जो क्लॉट नहीं होता, कितना भी टाइम हो जाए, 3 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, 10 मिनट, 15 मिनट, अरे ब्लड रुक ही नहीं रहा, तो समझ लो कोई डिसऑर्डर है। क्या डिसऑर्डर है? दैट इज हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर्स डिसीज। ब्लीड होते ही रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पे प्रॉब्लम है एक प्रोटीन फैक्टर में, वी कॉल इट एज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, वो या फिर एब्सेंट होता है या डिफिशिएंट होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफिशिएंट होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है देख लो, हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन होगा कन्वर्जन, वो होगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन होगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब जो ये थ्रोम्बिन है, ये जरूरी है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। जो ये फाइब्रिन बनता है, यही तो क्लॉटिंग करता है हमारा ब्लड का। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के क्लॉट कराता है। ठीक है, अब आप देख लो, जब क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, अगर थ्रोम्बिन नहीं है तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन नहीं बनेगा और क्लॉटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हीमोफीलिया में प्रॉब्लम क्या है बेटा, एब्सेंस या डिफिशियंसी ऑफ दिस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो हीमोफीलिया ए में क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये 8 ही है ना, 6 7 8, या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो डिफिशियंट है। हीमोफीलिया बी में क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9, और इसका नाम है क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, ये या फिर नहीं है या फिर डिफिशियंट है। ठीक है, तो ये होता है बेटा हीमोफीलिया डिसीज। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपके समझने के लिए मैंने दे दिया, अब जो टेक्स्ट बुक में है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो हीमोफीलिया डिसीज कैसे होता है, ये एक इनहेरिटेबल डिसीज है एंड इट इज एन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। तो अब क्या समझ में आया, सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या है, इधर एक्स होगा या फिर वाई होगा। अब यहाँ पे मैंने लेबल किया है एक्स लिंक, तो इसका मतलब है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। मैंने बोला ना, रिसेसिव डिसीज का मतलब क्या होगा, दोनों ही जो पेयर ऑफ अलील हैं उन केस में दोनों ही अगर रिसेसिव होंगे तो डिसीज कॉज करेगा। अगर एक है तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, कैरियर की कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो बेटा, सो विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम मेल प्रोजेनी। मैंने बोला था ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मैंने बोला था आपको कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया में देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने मिलता है। याद रखो आपके सिलेबस में 2 क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के डिसीजेस हैं, एक हीमोफीलिया, एक कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो बेटा, तो एक्स एक्स जो है ओके, एक नॉर्मल फीमेल की कंडीशन है। ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पे जो कैपिटल एच इंडिकेट कर रहा है वो नॉर्मल है, जो स्मॉल एच इंडिकेट कर रहा है वो अफेक्टेड है, समझ लो। ठीक है, जो स्मॉल एच दिखा रहा है वो अफेक्टेड या फिर डिसीज को दिखाने के लिए इंडिकेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कैपिटल एच स्मॉल एच, सो हियर शी इज अ कैरियर, ये कैरियर है। ओके, उसको डिसीज नहीं है लेकिन उसके आने वाले बेटे को ये डिसीज दे सकती है। ठीक है, तो हीमोफिलिक फीमेल कौन है, जिसके पास दोनों ही XX क्रोमोसोम में क्या प्रॉब्लम है, स्मॉल एच है, उनके जीन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जो एक्स क्रोमोसोम है वहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉर्मल मेल कौन है, जो कैपिटल एच वाई है,
हीमोफिलिक मेल कौन है? जो स्मॉल HY है। तो ये आपको समझना पड़ता है, ठीक है, ये इंडिकेशंस हैं, आपको जानना पड़ता है, ठीक है। सो डिसीज कैसे होती है? ये एक डिसीज है जो जहां पे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन अ कंट्रोल्ड पेयर ऑफ अलील whereas कैपिटल H इज नॉर्मल, स्मॉल h इज हीमोफिलिक, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया ना बेटा, वही चीज वो बता रहे हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है। एक फीमेल की हीमोफिलिक बनने की कंडीशन जो है वो बहुत ही रेयर है, बिकॉज मदर ऑफ अ फीमेल मस्ट बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी अफेक्टेड। अगर कोई फीमेल को हीमोफीलिया है तो कंडीशन क्या होगी बेटा? मदर कैरियर है और फादर हीमोफिलिक है, ठीक है। तो मदर कैरियर होगी, फादर हीमोफिलिक होगी, तब एक फीमेल को हीमोफीलिया होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है नेचर में मिलना, ठीक है। वही तो बताया मैंने यहाँ पे, अनवायबल इन द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसे आप देखते जाओगे तो लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक चीज मैंने बताया ना, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं और रॉयल डिसीज कहते हैं। क्यों रॉयल डिसीज? क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी ना इंग्लैंड में, क्वीन विक्टोरिया, शी वॉज अ कैरियर फॉर हीमोफीलिया। तो ये कैरियर थी, तो इसके कई सारे बच्चे जो है, जो मेल्स जो है सन, वो अफेक्ट हुए हैं और कई सारे फीमेल्स कैरियर भी बने हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस क्वीन, ठीक है। तो फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स, ठीक है। हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स कौन हो सकता है? मेल एंड फीमेल्स एज अ कैरियर, फीमेल एज अ कैरियर होंगे, मेल हीमोफिलिक अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे देख लो, ये क्वीन विक्टोरिया है जो कि कैरियर थी, इसकी वजह से इसकी बेटी एलिस कैरियर बनी, जो पता नहीं कौन है, लेपर्ड है, नहीं लेपर्ड है, पता नहीं क्या नाम है, ये अफेक्ट हो गया, ठीक है। पेडिग्री में आप देखोगे बेटा, जब ऐसे फुल्ली शेड होता है तो यह होता है अफेक्टेड, ठीक है, ये अफेक्टेड है। ये जो खाली डब्बा है ये नॉर्मल इंडिकेट करता है। तो इसी तरीके से कई बच्चों में अफेक्ट हो गया, कई सारे लड़कियां कैरियर बन गई, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रॉयल डिसीज, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो। अब बेटा इसमें पूछा क्या जाता है, देखो डिसीजेस में मैं आपको बताती हूँ डिसीजेस में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। एक आएगा ये ऑटोजोमल डिसीज है या एक्स लिंक्ड डिसीज है या वाई लिंक्ड डिसीज है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है, एक याद रखना है। दूसरा, अगर ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है तो डोमिनेंट है या रिसेसिव टाइप का डिसीज है, ठीक है। यूजुअली आपके सिलेबस में सारे रिसेसिव ही हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अब ये पूछेंगे बेटा केसेस, इंस्टेंसेस, तो इंस्टेंसेस में आपको क्रॉस करके प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ती है कि हाँ भाई, अगर ऐसे दो कंडीशन के लोगों ने शादी कर ली तो बच्चों का क्या होगा, कैसे बच्चे होंगे, कितने मेल होंगे या कितने फीमेल होंगे, कैसे अफेक्टेड होंगे, कितने कैरियर होंगे, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। तो नीट में आप इन तीनों एरिया से, डिसऑर्डर्स में से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको दिया है क्रॉस, यहाँ पे नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, ये एक्स लिंक डिसीज है ना, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने XX लिया है, XY लिया है, ठीक है। तो नॉर्मल फीमेल है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल का मतलब क्या है, स्मॉल H लिया है और Y क्रोमोसोम, गैमीट्स ले लिए हमने, यहाँ पे गैमीट्स को निकाल लिए और यहाँ पे हमने क्रॉस किया, फर्टिलाइजेशन करवाया। तो करवाने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी आपको मिलती है बेटा, यहाँ पे देख लो, कैरियर फीमेल है, ठीक है, एक कैरियर फीमेल है, एक नॉर्मल मेल है, अगेन कैरियर फीमेल, अगेन नॉर्मल मेल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब आपको 50% कैरियर फीमेल है, 50% नॉर्मल मेल है। जैसे अफेक्टेड मेल तो यहाँ पे 0% है, ठीक है, समझ लो, ये एक्चुअली मैंने लास्ट बैच के क्वेश्चन में दिया था, तो वहां पे मैंने उनको क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्रॉस है, बताओ कितने अफेक्टेड मेल हैं। तो यहाँ पे अफेक्टेड मेल 0% है बेटा, क्यों? क्योंकि 50% फीमेल कैरियर्स हैं और 50% नॉर्मल मेल हैं। तो इसी तरीके से आपको क्रॉस करना आना चाहिए और क्या ऑफस्प्रिंग में आ रहा है वो बताने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और एक केस मैंने दिया है, फीमेल कैरियर और नॉर्मल मेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर गैमेट्स निकाल के क्रॉस करोगे तो ऐसा कुछ कंडीशन आपको दिखेगा। बेटा आप सबको क्रॉस करना तो आता है ना, मुझे पता आप सारे ब्राइट बच्चे हैं, सबको क्रॉस करना तो आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे आप देख लोगे तो ये कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल है, कैरियर फीमेल और अफेक्टेड मेल। तो ऐसे क्रॉस में आपको पूछा जाएगा कितना परसेंट यहाँ पे नॉर्मल फीमेल है। राइट करो बेटा, राइट इन द चैट बॉक्स, मुझे बताओ इस क्रॉस में कितने परसेंट
नॉर्मल फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी है? बताओ मुझे। मैंने ही सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, बस आप मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ, नॉर्मल फीमेल होने की इस क्रॉस में कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है? बेटा जल्दी जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। किसी को नहीं पता? बेटा 25% ना, 25% प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल फीमेल होने की, है ना? हाँ चलो, अभी अभी आंसर आया साक्षी और साहिल का 25%। क्योंकि बेटा 100% आप जब भी परसेंट में पूछते हैं तो आपको 100 का नंबर लेना है। हमारे पास जब भी आप क्रॉस करते हो तो आपको 4 ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं। तो 25 25 25 का आप याद रखो बेटा, ठीक है? तो आप 50%, अगर दोनों सेम है तो 50% लिख दिया, अगर 3 है तो वहां पे 75%, अगर एक की बात हो रही है तो 25%। तो ऐसे परसेंट में आप प्रोबेबिलिटी निकालो, या फिर पूछा जा सकता है रेशियो में। ओके, तो रेशियो में आपको याद रखना है कहाँ पे आपको 1:1 डालना है या 1:0 डालना है, वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वही चीज बताई है, क्रिस क्रॉस आपको दिखेगा। फादर अफेक्टेड है तो डॉटर कैरियर होगी, अगर डॉटर कैरियर है तो अफेक्टेड सन होगा, अफेक्टेड सन से फिर इसकी जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी। तो ऐसे करके ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है। सेम हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है? यस, ओके साक्षी बेटा, हम लोग अभी आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू द कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया क्या था, वो भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव था। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, वो भी सेक्स लिंक्ड। देखो बेटा, आप अगर एक याद रख लोगे ना, वो एकदम सेम है हीमोफीलिया को भी, दोनों जैसे भाई भाई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू the effect of either red or green cone of eye resulting into the failure to discriminate the colors। देखो बेटा, प्रॉब्लम हो रहा है आपको पता है ना, हमारे आंखों में होती है रॉड कोन्स, वो सब होता है, ठीक है? आप पढ़े हो वो सब चीजें, ठीक है? तो वहां पे कुछ डिफेक्ट हुआ, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, द पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द कलर बिटवीन रेड एंड ग्रीन। दोनों के कलर में कलर डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है, ठीक है? सो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स दैट इज प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। हाँ भाई, एक्स लिंक्ड है तो एक्स क्रोमोसोम की ही बात कर रहे हैं ना। तो बेटा वाई लिंक्ड डिजीज बिल्कुल नहीं पूछा जाता, अगर पूछा जाए तो वो याद रखना जो मेल में हमने बताया, हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है? वो एक एग्जाम्पल आपको दिया है, बस आप वो याद रखो, ठीक है? बाकी सारे अगर सेक्स लिंक्ड हैं तो यूजुअली होते हैं एक्स लिंक्ड, ठीक है? तो वो याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट अकर्स इन 8% मेल वेराज 0.4% इन फीमेल। मैंने बताया ना बेटा, जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है, यहाँ पे सेक्स लिंक्ड एक्स है ना, एक्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या होगा, लेडीज के पास तो 2 हैं, चांसेस हैं बचने के बहुत ज्यादा, मेल के पास एक ही एक्स है। जो भी प्रॉब्लम होगा एक्स में, वो एक्सप्रेस होगा ही होगा, इसीलिए मेल में एक्सप्रेशन होने के डिसऑर्डर चांसेस बहुत ज्यादा है, फीमेल में कम है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या नंबर लिखा है बताओ तो जरा मुझे चैट बॉक्स में। कैन यू रीड द नंबर इन दिस फिगर, इफ नॉट यू मे हैव कलर ब्लाइंडनेस। अब भी पता लगाते हैं आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं। यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर कलर ब्लाइंड। यहाँ पे जो नंबर, अरे क्या हो गया इसको, 74 या 71? 74 ही है। चलो, दूसरों को तो पता नहीं, साक्षी और गायत्री तो कलर ब्लाइंड नहीं है, साहिल भी नहीं है, दूसरों को तो पता नहीं क्योंकि दूसरे लोगों ने कुछ लिखा नहीं है ना। चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए जब कभी भी होता है ना, क्रॉसिंग का पूछते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे अराइज होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस दिए हैं बेटा, चारों प्रोबेबिलिटी इसमें इस डिसीज में मैंने दिए हैं, कुछ अच्छा सा पिक्चर मुझे मिल गया तो ऐड कर लिया। यहाँ पे देख लो बेटा, नॉर्मल मेल है और कैरियर फीमेल है, ठीक है? नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल, यहाँ पे हमने क्रॉस किया तो हमको क्या प्रोबेबिलिटी मिली, 50% ऑफ चांस फॉर सन्स हैविंग द क्या कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? 50% चांस है कि कलर ब्लाइंडनेस होगा बेटों को, और 50% चांस है कि लड़कियां कैरियर बनेंगी इस क्रॉस में, ठीक है? आपको जरूरी नहीं है कि अभी याद रखो बेटा, बस आपको क्रॉस करना आना चाहिए और प्रोबेबिलिटी निकालना आना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे दूसरा क्रॉस है, ठीक है, जहां पे अफेक्टेड मेल है और नॉर्मल फीमेल है, अफेक्टेड मेल और नॉर्मल फीमेल है। यहाँ पे देख लो, 2 जो मेल है नॉर्मल है और 2 जो फीमेल है, ये दोनों ही 50% कैरियर है, फीमेल में 50% नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है?
तो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि 100% चांस ऑफ सन हैविंग द नॉर्मल विजन। क्यों? क्योंकि बेटा दो मेल दो फीमेल का यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है, तो दोनों ही मेल को कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, और दोनों ही फीमेल तो कैरियर बनेंगे बनेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, अरे यहाँ पे कुछ पॉइंट था ना, मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम whereas फीमेल्स हैव टू, मैंने बताया ना, वही इसी की वजह से मेल में ज्यादा डिसीज एक्सप्रेस होता है, फीमेल में कम। The son of a woman who carries the gene has the 50% chance of being colorblind, ठीक है, ये तो अभी मैंने बता दिया। Now, a daughter will not normally be colorblind unless, मैंने बताया ना बेटा, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर एक फीमेल हीमोफिलिक या फिर कलर ब्लाइंड है तो कंडीशन क्या होगी, मदर कैरियर होगी और फादर अफेक्टेड होगा, तभी जाके एक फीमेल में कलर ब्लाइंड या फिर हीमोफिलिया दिखता है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉसेस दी हैं बेटा, पीपीटी में होंगी, आप देख लेना, ठीक है। विल मूव अहेड। नेक्स्ट डिसीज इज फिनाइल कीटोयूरिया, ठीक है। तो क्या होता है बेटा ये डिसीज, ये एक मेटाबॉलिज्म का एरर है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुई थी, ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। दिस इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, अगेन रिसेसिव, जो प्रीवियस में देखे वो भी रिसेसिव थे, यहाँ पे भी रिसेसिव है, ठीक है। तो ये है बेटा प्रॉब्लम। नाउ द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, यहाँ पे एक एंजाइम की मिसिंग है या फिर कमी है, that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine। अब देख लो बेटा, ये एक नॉर्मल पर्सन है, ये एक पीकेयू वाला पेशेंट है, ओके, ये कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है पीकेयू, ये फिनाइल कीटोयूरिया पे इंडिकेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास नॉर्मल प्रोटीन है फिनाइलएलानाइन, तो ये फिनाइलएलानाइन को कन्वर्ट होना है टायरोसिन में, और ये जो कन्वर्जन होगा ये इन्फ्लुएंस करता है एक एंजाइम से, एंजाइम का नाम है फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज है तो वो बंदा है नॉर्मल, उसको फिनाइल कीटोयूरिया नहीं है। अगर समझो इस बंदे में या फिर कोई भी बंदे में फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है या कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो उस पर्सन को हम बताते हैं पीकेयू का पेशेंट। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम नहीं है, तो फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, जो फिनाइलएलानाइन हम उसके बॉडी में है पेशेंट के, वो अक्यूमुलेट होगा ज्यादा होते होते क्या बन जाएगा, फिनाइल पाइरुविक एसिड, ठीक है। तो फिनाइलएलानाइन से टायरोसिन बनना था बट एंजाइम नहीं है, तो अक्यूमुलेट होके फिनाइल पाइरुविक एसिड बनेगा। जब ये अक्यूमुलेट होता जाएगा बॉडी में तो प्रॉब्लम होंगे, क्या प्रॉब्लम होंगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पोर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगे फिनाइल कीटोयूरिया में, ठीक है। और ये कुछ मैंने फोटोज डाले हैं जो दिखता है फिनाइल कीटोयूरिया का पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस भी है, ये आप देख लो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर डिसीज दैट इज थैलेसेमिया, बहुत कम टाइम है भाई, ओके। सो दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, अगेन रिसेसिव, सारे रिसेसिव हैं बेटा, याद रखो। दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। इसका ऑटोसोम का मतलब क्या है, एक्स वाई का कोई यहाँ पे झमेला नहीं है, पूरा ऑटोसोम में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर अ जीन दैट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, कि दोनों ही कैरियर हैं बेटा पेरेंट्स, ठीक है। समझ लो ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन है पेरेंट और मदर में दोनों में ही, तो इस कंडीशन में ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, जो थैलेसेमिया है दिस इज एन क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, ठीक है। आपको पता है बेटा आरबीसी है, ठीक है, तो आरबीसी में आपको क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलेगा, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन बनता है, मैंने आपको बताया एक हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप के साथ 2 अल्फा ग्लोबिन चेन 2 बीटा ग्लोबिन चेन होते हैं, है ना। सो 1 अल्फा एंड 1 बीटा। सो हियर यू कैन सी थैलेसेमिया जो है ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे या फिर नंबर कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा, कम होगा। मेरा सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है बेटा, मैंने आपको बताया ना, गाग की जगह पे गूग होता है, ओके। सो सिकल सेल एनीमिया इज अ प्रॉब्लम that is caused by qualitative problem, thalassemia is caused by quantitative problem, ये क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो बेटा थैलेसीमिया कैसे हो रहा है, दिस इज आइदर कॉज्ड बाय नॉर्मल म्यूटेशन या फिर कोई और म्यूटेशन और डिलीशन।
ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स दैट मेक अप द हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनता है, ओके, दैट प्रोटीन बनता है, तो उसमें क्या होगा बेटा, ग्लोबिन चेन का रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये क्वांटिटेटिव है, जब कम होगा नंबर तो रिड्यूस होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, सो दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया। ठीक है, एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। तो थैलेसीमिया में दो टाइप्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, देखो बेटा, ये यहाँ पे पढ़ो मत, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। जो क्रोमोसोम 16 है, ऑटोसोम की बात कर रहे हैं बेटा, थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल डिसीज। ठीक है, तो क्रोमोसोम 6 आप ले सकते हो। तो यहाँ पे दो हैं बेटा क्लोजली लिंक्ड जीन्स, एक होता है HbA1 एंड अनदर वन इज HbA2। जो HbA1 और HbA2 है, ये बहुत क्लोजली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ म्यूटेशन या डिलीशन दिख गया, ठीक है, तो वो कॉज करता है प्रॉब्लम इन द अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैंने बताया ना, हीम के अल्फा 2 ग्लोबिन 2 होते हैं। जब अल्फा में प्रॉब्लम होता है तो वो अल्फा थैलेसीमिया बनता है। तो अल्फा थैलेसीमिया कैसे बनता है, अगर कोई भी जीन में म्यूटेशन हो रहा है, दैट इज कोई भी नहीं, क्रोमोसोम 16 के HbA1 और HbA2 में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, तो अल्फा थैलेसीमिया बनता है। ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, सिमिलरली क्रोमोसोम 11 के HBB जीन में, ठीक है, अल्फा में HbA जीन था, बीटा थैलेसीमिया में HbB जीन है, वहां पे दो क्लोजली लिंक्ड जीन थे, यहाँ पे एक ही जीन है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम 11 में अगर कुछ प्रॉब्लम है, म्यूटेशन हुआ या कुछ हुआ, तो डिसीज शो करता है बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है बीटा और अल्फा थैलेसीमिया। क्लियर? नाउ कमिंग टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट। ये सब हमने पढ़ लिया है बेटा, है ना, ये मैंने आपको समझा दिया है लास्ट क्लास में ही। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे मैंने दी है, एन्यूप्लॉइडी विच इज एन एग्जांपल फॉर डाउन सिंड्रोम। ठीक है, जहां पे क्या होगा बेटा, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स का होता है प्रॉब्लम। ठीक है, आइदर यहाँ पे कहीं पे ऐड हो जाता है कोई क्रोमोसोम, यहाँ पे कोई डिलीट हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी है बेटा। तो ये चीजें मैंने बताई हैं लास्ट क्लास में, बट क्योंकि सिलेबस में है तो फिर से ऐड कर लिया। नलिज्म में क्या हो रहा है, इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम पेयर देयर इज अ लॉस ऑफ 2 क्रोमोसोम, तो कुछ नहीं बनता। ठीक है, नलिज्म। मोनोजोम में एक क्रोमोसोम का सेट होता है, तो वहां पे एक क्रोमोसोम लॉस्ट होता है। तो सिमिलरली ट्राइसोम एंड टेट्रासोम में, यहाँ पे देख लो बेटा, ये एग्जाम्पल मैंने जो दिया है, ठीक है, ये दिया है मैंने ड्रोसोफिला का। ओके, व्हाट यू लुकिंग हियर इज अ ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में कितने हैं बेटा क्रोमोसोम्स, आप देख लो, इसमें होते हैं 8 क्रोमोसोम्स। 8 क्रोमोसोम्स हैं तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 जो हैं ये ऑटोसोम्स हैं, और जो लास्ट है ये सेक्स क्रोमोसोम है, दैट इज अलोसोम। ठीक है, तो अलोसोम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो नलिसोम है तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कुछ नहीं बचा। मोनोसोमिक क्या है, एक ही बचा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ट्राइसोमिक में एक एक्स्ट्रा आ गया, टेट्रासोमिक में 2 एक्स्ट्रा आ गए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सो दिस इज यू नीड टू रिमेंबर। तो सेम चीज यहाँ पे भी मैंने बताया है, पॉलीप्लॉइडी में होल सेट ऑफ क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो सकता है ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है बेटा, सेल का डिवाइड होना। अनदर नेम इज कार्योकाइनेसिस, व्हेन न्यूक्लियस इज गेटिंग डिवाइडेड, है ना। तो ये कंडीशन तो आपने देख ली है। ट्रिप्लॉइड कंडीशन आप देख सकते हो, ठीक है, या फिर टेट्राप्लॉइड, ये आप देखोगे बेटा सैल्मन फिश में, ठीक है, आप सैल्मन में देखोगे, या फिर ये कॉटन प्लांट में भी आपको दिख सकता है। ठीक है, ये ट्रिप्लॉइड आप बनाना प्लांट में देख सकते हो। ठीक है, बट ये जो कंडीशन है, इट इज वेरी रेयरली सीन इन ह्यूमंस बट ऑफनली सीन इन प्लांट्स। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है बेटा, दिस इज द genetic disorder where an additional copy of chromosome is added। अब देखो बेटा 21 क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम यहाँ पे ट्राइसोमी दिखा रहा है। तो देखो XX XY तो ठीक है, बट ऑटोसोम में 44 होना चाहिए थे, बट 45 हो गए। क्यों? क्योंकि 21 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ऐड हो गया। यहाँ पे देख लो। सो दिस इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये सिम्टम्स है, देखो बेटा, ये बच्चों को ऐसे दिखते हैं जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, और ये जो साइंटिस्ट था लैंगडन डाउन, जिसके वजह से हुआ है, यहाँ पे सिम्टम्स दिए हैं।
ठीक है, देख लो फेस से आपको पता चलेगा बेटा स्मॉल राउंड हेड है, छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, टंग थोड़ी बाहर आएगी, पार्शियल जो है वो आधा ओपन रहेगा, ठीक है। हाथ में आप देखोगे फिंगर टिप्स में तो लूप्स आपको दिखेंगे, फिजिकली रिटार्डेड होंगे, इनको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ ये यहाँ पे देख लो डाउन सिंड्रोम पिक्चर में आपको दिखाया है, ठीक है। नाउ क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम, यहाँ पे लिनेफिल्टर भी आप बुला सकते हो, क्लिने भी बुला सकते हो, एक्चुअली के यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी। लास्ट में क्या हुआ था, एक कॉपी ऐड हुई थी ऑटोजोम में, ट्राइजोम ही हुआ था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में ऐड हो गया। देखो यहाँ पे एक्स एक्स होना चाहिए था फीमेल में, बट एक ऐड हो गया वाई, ठीक है, सॉरी एक्स वाई होना चाहिए था, एक ऐड हो गया एक्स, ठीक है, एक्स वाई होना चाहिए था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स ऐड हो गया, ठीक है। सो ये होता है क्लिनेफिल्टर। तो ये आप यूजुअली देख सकते हो ना, जिसको हम बुलाते हैं ना बेटा, जो स्ट्रेट नहीं होते, या फिर हम जो बुला सकते हैं कि थर्ड जेंडर, यही होता है बेटा, क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम ही वो थर्ड जेंडर है, ठीक है। आई नो, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम, हम लोग खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिम्टम्स क्या दिखेंगे बेटा, मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो होगी, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगी, क्यों, क्योंकि एक्स वाई दोनों ही है, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स यहाँ पे आप क्या देखोगे, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट विच इज कॉल्ड एज गाइनेकोमास्टिया, गाइनेकोमास्टिया होगा, बट ये जो है ये स्टेराइल होंगी, समटाइम्स मेंटली रिटार्डेड, मेंटल रिटार्डेड ऑलवेज होना जरूरी नहीं है, कुछ बार हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। नाउ कमिंग टू टर्नर सिंड्रोम, आप टर्नर सिंड्रोम देखते हो फीमेल्स में बेटा, फीमेल्स में 2 एक्स होना चाहिए था, बट यहाँ पे एक एक्स एब्सेंट है। जब पे एब्सेंट होता है, मैंने आपको बोला था हम लोग ओ डालते हैं, ठीक है, इट इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे देख लो 2 एक्स होना चाहिए था फीमेल में, एक ही एक्स है। लिनेफिल्टर में एक्स वाई की जगह पे एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गायब है, ठीक है। तो क्या आपको सिम्टम्स दिखेंगे, कैरेक्टर्स दिखेंगे, वोवरीज तो हैं बट स्टेराइल हैं एंड नॉन फंक्शनल, रूडिमेंट्री हैं। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे फीमेल में होती है ना बेटा, प्यूबर्टी होती है, ग्रोथ ऑफ हेयर, ओके, प्यूबिक हेयर, अंडरपिट हेयर, वो प्रॉब्लम्स होते हैं, और ड्वार्फ होती है, मेंटल रिटार्डेड होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, आप आंसर करके चैट बॉक्स में चले जाओ। अ मैन हैज एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, स्पार्स मतलब लिटिल बेटा, little hair on the body, and sex chromosome formula is XXY. Then which disease we are talking about? PDF कहाँ मिलेगी मैम? बेटा एक हम आपको देंगे ड्राइव, PDF ड्राइव बना के, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के PPT मिलेंगे, ठीक है। वेरी गुड साहिल, लिनेफिल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ था, एडवर्स सिंड्रोम बेटा होता है, ये दूसरा है, ये आप देखोगे 16 क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगी। डाउन सिंड्रोम क्या होगा, 21st में ट्राइजोमी आपको दिखेगी, ठीक है, ट्राइजोमी। सो दैट्स ऑल, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज एवरीबॉडी कैन लीव। वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा। आई नो आई हैव टेकन सम एक्स्ट्रा 5 minutes, but we have completed the chapter. Congratulations. Thank you so much Gayatri. Okay beta, everyone take care. If you have any doubts you can ask in the chat box, या फिर आप सैटरडे की क्लास के लिए बचा के रखो सारे डाउट्स, ठीक है। चलो बेटा, सी यू एवरीवन।